Hello, welcome to this physics video, and in today's video we will have the topic which is regarding to image formation by concave and convex lens. So in our previous video we have discussion regarding to the ray rules. Now with the help of ray rule we will have this image formation by concave and convex lens. So now let us look over here this very first case that when object is at infinity, object at infinity. Okay, so what will be the nature of image and where the image will form? So this we have to check over here. So when the object is placed at infinity, then for that image formation from this convex lens, this is convex lens and this is concave lens. So here there is the principal axis and this is optical center, which is mentioned in both of these diagram. So its second focus that it is f2 and this f2 and f1 they are equal because the radius of these two cursor faces are equal. Okay, thus their focus is also equal. So f1 is equal to f2 over here, and f2 over here, if we doubles this one, so it will become 7, that is second f2. Similarly over here, that as much is the length, so similar to that the next one, so it becomes over here double of f1. ठीक है. नाउ ओवर हेयर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है देन यू नीड टू ब्रिंग ओवर हेयर दिस पैरेलल रे ऑफ लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. सो द पैरेलल रे ऑफ लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस and according to the ray rule parallel rays to the principal axis that will converge, they will meet at one point. Okay, so this is going to meet at one point. So here they are meeting at this second focus. Okay, so we were having over here, this is the object which was at infinity, object at infinity. So this was very large in size, but the image which is formed over here, it is very point size image. Okay, so thus we will have the nature. If we talk about of nature, so what type of nature of the image? So first point is there, this is you need to look over here and that these rays are meeting by their self. So here these rays are meeting by their self, so whenever they will meet by their self, then real image will form over there. So real image, नेचर इमेज कैसी बनी, सो इट इज़ रियल इमेज. सेकंड पॉइंट, जो रियल इमेज है वो हमेशा ही उल्टी होती है, अपसाइड डाउन. अगर आप ऐसे खड़े हैं तो आपकी इमेज कैसी दिखती है, अपसाइड डाउन हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये इसको क्या बोला गया, इन्वर्टेड इमेज. दिस इज इन्वर्टेड इमेज. एंड द थर्ड पॉइंट ओवर हियर, वेयर दिस इमेज इज गोइंग टू फॉर्म, सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म एट f2. ठीक है, तो सेकंड फोकस के ऊपर इमेज फॉर्म करती है. एंड द फोर्थ पॉइंट, अबाउट ऑफ इट साइज, कितनी बड़ी साइज की इमेज बनी. सो इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, सो हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटी बनती है. सो इट इज़ हाईली डिमिनिस्ड साइज. ओके, सो दिस इज दैट नेचर ऑफ द इमेज. इफ वी लुक फॉर दिस वन ओवर हेयर, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी क्या होगा, जो पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो ऑप्टिक एक्सिस, यहाँ से आपने बेंडिंग शो करनी है. ठीक है, तो ये थिन लेंसेज है इसलिए हमारे पास बीच में से आपने रिफ्रैक्शन शो करनी है. सो ओवर हियर, ये जो हमारे पास रे ऑफ लाइट है विच विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस सेकंड फोकस. ठीक है, तो ये कहाँ से आती हुई दिखाई देती है, इट कम्स फ्रॉम इट्स सेकंड फोकस. सो इन दिस वे दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस डायग्राम here. This spreads out, but if we retrace them back, so they meets at f2. Okay, so this is the image formation. Now what is the nature, कैसी इमेज बनी. सो वी विल फाइंड ओवर here that rays were not meeting directly, we were retracing them back, हम उनको आपस में मिला रहे थे. तो इसलिए whenever you will perform such an activity, that time image will be virtual. So this is virtual image. Now the second point over there, जो वर्चुअल होती है वो हमेशा ही इरेक्ट होती है. इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, आप इस तरह से खड़े हैं तो आपकी इमेज भी क्या हो रही है, वैसे ही बन रही है. ठीक है, तो इसलिए इरेक्ट इमेज बनेगी. और ये क्या थी, इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन हो गया था. ठीक है, थर्ड पॉइंट ओवर देयर, वेयर इट इज़ गोइंग टू फॉर्म, सो इट इज़ एट f2. ठीक है, तो इसका सेकंड फोकस हमारे पास लेफ्ट साइड आता है. ठीक है,
जिस तरफ लाइट आ रही है उसी तरफ इसका सेकंड फोकस होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज देयर दैट इट इज फोर्थ पॉइंट. व्हाट अबाउट द साइज? सो दिस इज अगेन हाईली डिमिनिस्ड. तो ये साइज कैसा हो गया? हाईली डिमिनिस्ड हो जाता है. ओके, दिस इज दैट फर्स्ट केस विच वी डिस्कस ओवर हियर. Therefore, for convex lens, this serial number, position of object, position of image, nature of image, and where this is used. ये जो फर्स्ट जो हमारे पास पोजीशन है ये कहाँ पर यूज़ की जा रही है? सो दिस इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट फोकस और इधर ऑन द फोकल प्लेन. ठीक है. एंड फोकल प्लेन पे तब बनती है जब रेज जो है वो नॉन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी. ठीक है. सो ओवर देयर नेचर कैसा बना? रियल बना, इन्वर्टेड बना, एक्सट्रीमली डिमिनिस्ड, विच वी हैव रिटन ओवर हेयर. ओके, ऑल दीज पॉइंट्स विच वी हैव मेंशन्ड ओवर हेयर. एंड नेक्स्ट दैट इट इज़ यूजेस. तो यूजेस कहाँ पर? तो टेलीस्कोप में क्या किया जाता है? जो स्टार गेजिंग, तो प्लेनेट कहाँ पर होते हैं? बहुत दूर होते हैं, तो इसलिए इन्फिनिटी के ऊपर हुए. ठीक है. और कैमरास भी क्या करते हैं? जो कैमरा के अंदर लेंस है, तो लेंस भी क्या करता है हमारे पास? जो उसके सामने ऑब्जेक्ट है वो दूर है. ठीक है. तो इसलिए जो इमेज है वो अपने फोकस के ऊपर बनाएगा. और इफ़ वी वांट टू वर्न एनी पेज, so that we will focus all the rays of the sun with the help of this convex lens at a point. And at that point if we will place any paper, so it will start to burn. तो इसलिए बर्निंग ग्लास में भी ये जो हमारे पास सिचुएशन है वो यूज़ की जाती है. Now over here we are taking that when object is beyond 2f1. अब हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेंस की तरफ हमने लाना शुरू किया. ठीक है. सो नाउ वेयर दिस ऑब्जेक्ट इट इज 2f1. सो लेट अस सी दिस डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस. So here in this diagram we are placing this object beyond second focus. ठीक है. तो इन्फिनिटी और सेकंड फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया. नाउ वेयर द इमेज विल फॉर्म. सो फॉर दिस वंस अगेन अ पैरेलल रे ऑफ लाइट विल गो टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये पैरेलल रे है. सो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेयर इट विल गो फ्रॉम इट्स सेकंड फोकस. तो ये इसके सेकंड फोकस से पास हो जाती है. एंड द सेकंड रे ऑफ लाइट दैट इट गोज फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर. तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट है वो अंडरवेट जाती है. एंड दैट टाइम इट passes undeviated over here. So these two rays now after refraction, ये जो दो रेस हैं ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या करती हैं? यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक है. सो वेयर दे आर गोइंग टू मीट ईच अदर, द इमेज विल फॉर्म एट दैट पोजिशन. ओके. तो चेक ओवर देयर फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड द इमेज. वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम द एरो हेड. ये एरो हेड से शुरू किया. सो वेयर दे विल मीट, एरो हेड विल फॉर्म एट दैट पोजिशन. एरो ही यहाँ पर एरो हेड बनेगा. एंड दिस इज द इमेज ओवर हेयर. ओके. सो नाउ व्हाट टाइप ऑफ द इमेज? नेचर कैसा बना? सो नेचर वी आर टॉकिंग ऑफ अबाउट फर्स्ट दैट इट इज automatically these rays are meeting, so it is real image. And second point is there that this is inverted. And the third is there that it is between where it is going to form between f2 and 2f2, this is going to form. And the fourth point is what about the size? So this is as compared to the object, this is small in size, so therefore we will write this is as diminished size. सो दिस टाइम इट इज़ नॉट हाईली डिमिनिस्ड. इस वक्त ये हाईली डिमिनिश नहीं है, बहुत छोटी नहीं है, छोटी है लेकिन हाईली नहीं है. ठीक है. सो दिस इज सिंपली रिटन ओवर हेयर डिमिनिस्ड. नाउ द थर्ड केस दैट वंस अगेन वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लेंस. Now in this third case that object is exactly going to lie on 2f1. So here it is the 2f1. So on second focus ये जो हमारे पास 2f1 है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनता था ये एक्चुअल में. तो लेंस के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2f1 और यहाँ पर राइट साइड में 2f2 से शो करते हैं. सो एज ऑलरेडी सेड ओवर हेयर कि f1 और f2 आपस में इक्वल हैं. तो जितने लेफ्ट साइड की फोकल लेंथ है उतनी राइट साइड की. क्यों? क्योंकि दोनों के रेडियस एक बराबर हम यूज़ कर रखते हैं. ठीक है. नाउ ओवर हेयर ये ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जैक्टली सेकंड फोकस पे रखा गया. ठीक है, लेफ्ट साइड में. सो द पैरेलल रे ऑफ लाइट विल गो ओवर हेयर
and after refraction it will passes from its this ऑप्टिकल ये जो फोकस है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से ये पास कर जाएगी. दिस इज़ द वन रे रूल दैट विच वी अर्ली डिस्कस. एंड द सेकंड रे रूल्स ओवर है कि हमारे पास एक रे ऑफ लाइट जो इसके फोकस से जाती है. सो आफ्टर फॉलिंग ऑन दिस लेंस, तो जैसे ये लेंस के ऊपर फॉल करती है तो उसके बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. दिस इज सेकंड रे रूल दैट आई एम गोइंग टू यूज ओवर है. So it becomes parallel to the principal axis. ठीक है. So now over here these two rays they are meeting at this point. Okay, so exactly below this 2f2 this image is going to form. Okay, so the size if we are looking they are going to be same. So once again nature, तो नेचर की बात करें, फर्स्ट अपने आप मिल रही हैं तो रियल इमेज. सेकंड पॉइंट हमारे पास है रियल हमेशा कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं. थर्ड पॉइंट ओवर देयर कहाँ पे बन रही है, एट 2f2 हमारे पास बन रही है. व्हाट अबाउट द साइज, इट इज़ ऑफ सेम साइज. तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है. Now the fourth point that object is going to lie between 2f1 and f1. So this is the 2f1 and this is f1. So the object could be between of it. Okay, so where the image will form and what will be the nature. So for this that we need to take a parallel ray of light to the principal axis. After refraction it will move from its second focus. Okay, so this is the first ray rule. And the second ray rule over here that a ray of light which will pass directly from its optical center, so it will pass undeviated, and these rays they are going to meet at this point. Okay, so as already said, ये जो जितनी भी रेस है ये कहाँ से शुरू हो रही है, इस एरो हेड से शुरू हो रही है, इस एरो हेड से. तो जहाँ पर ये मीट करेंगी वहाँ पर भी क्या बनेगा, एरो हेड बनेगा. ठीक है. सो दस वी विल हैव ओवर हियर दिस इज द इमेज. यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट कर जाएगा. ठीक है. सो दिस इज दैट इमेज फॉर्म्ड. ठीक है, ये क्या बनी हमारे पास, इमेज. एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज़ द नेचर. वंस अगेन अगर नेचर की बात की जाए, सो नेचर दैट इट इज़ फर्स्ट अपने आप मिल रही हैं रियल इमेज. ठीक है. सेकंड पॉइंट ओवर देयर रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती हैं. थर्ड पॉइंट इज देयर कहाँ पे बन रही है, सो इट इज़ बियॉन्ड 2f2 बन रही है, इट इज़ बियॉन्ड 2f2. एंड व्हाट अबाउट द साइज. सो इफ वी टॉक अबाउट ऑफ द साइज देन इट इज़ बिगर देन ऑब्जेक्ट. वी कैन चेक इट आउट, ये बिगर देन ऑब्जेक्ट बन रही है. सो एज यू विल हैव दिस ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ द इमेज, so you will find that image is bigger as compared to that object. Now let us to discuss over here, this is the fifth point. Now in this case that object is going to lie at f1. So here it is the f1 in front of this convex lens, it is going to lie at f1. So the parallel rays to the principal axis after refraction it will bend and it will go straight. Okay, and that is second ray of light that it will go from its optical center, and in this way it will pass. Okay, so over here we will find that as दिस रे, ये जो सेपरेशन है इन रेस के बीच में वो क्या कर रही है, स्लाइटली इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज. Okay, so it means to say that these rays are going to meet to each other. What they will meet to each other, so they will appear to meet at इन्फिनिटी. कहाँ पर ये मीट करेंगे, आपस में डायरेक्टली मीट हो जाएंगे. कहाँ पर मीट करेंगे, लेकिन इन्फिनिटी, बहुत दूर जा कर के. दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द प्लेन ऑफ दिस पेपर. ठीक है, वी हैव टू चेक ओवर देयर कि ये इस पेपर से भी बाहर जा कर के मीट कर रही है. सो दैट टाइम जो इमेज होगी दैट विल बी हाईली मैग्नीफाइड. ठीक है, तो हमारे पास जो इमेज है वो क्या हो रही है, इसमें हाईली मैग्नीफाइड हो रही है, बहुत बड़ी इमेज जो है इसमें फॉर्म होने वाली है. सो दैट्स वी विल फाइंड दैट नेचर. तो नेचर की बात करें, व्हाट विल बी द नेचर. सो फर्स्ट पॉइंट इट इज़, ये क्या बन रही है, रियल इमेज, क्योंकि ये जो दोनों रेज हैं ये आपस में डायरेक्टली मीट करने वाली हैं. ठीक है. सेकंड पॉइंट, जो रियल होती हैं वो कैसी होती हैं, हमेशा ही इन्वर्टेड होती हैं. थर्ड पॉइंट, कहाँ पर बन रही हैं, तो ये एट इन्फिनिटी के ऊपर बन रही हैं. ठीक है, वेयर दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड एट, इट इज़ एट इन्फिनिटी. ठीक है. और फोर्थ पॉइंट, व्हाट अबाउट द साइज. तो ये हमारे पास एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, बहुत बड़े साइज़ की बन रही हैं.
ओके, तो ये एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होंगी. ओके, दिस इज द रे डायग्राम फॉर दैट. नाउ लेट अस टू टेक ओवर हियर वन मोर केस. Now over here that sixth case when object lies between F1 and optical center. तो F1 और optical center के बीच में अब ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरह से लाई करने वाला है. ठीक है. Now once again a parallel ray of light, take it parallel and after refraction it will go from its second focus. So here it is going from its second focus and second ray of light that will pass from its optical center. So this is over there. So this is second ray rule. ओके, नाउ यू विल फाइंड दैट ये जो रे ऑफ लाइट है, हेयर द सेपरेशन इट वाज स्मॉलर बट हेयर दिस सेपरेशन इट हैज़ इंक्रीज्ड. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन टू से ओवर देयर दैट दिस रेस विल नॉट मीट टू ईच अदर डायरेक्टली. ओके, क्योंकि ये सेपरेशन क्या हो रही है, आगे आगे के लिए बढ़ती जा रही है. सो दैट्स वी विल देन वी हैव टू रिट्रेस इट बैक. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको रिट्रेस बैक करते हैं एंड वी विल रिट्रेस बैक दिस रेस of light. So they are appearing to meet at a point. So where they are appearing to meet at a point, so that place image will form. तो जहाँ पर ये मीट करती हुई दिखाई देती है वहाँ पर क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगी. नाउ व्हाट विल बी द नेचर इफ वी टॉक अबाउट ऑफ नेचर. तो नेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन है तो कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है. ठीक है, और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है. ठीक है, और हमारे पास जो इमेज है वो किस तरफ बनी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन रही है. सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज भी बन रही है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड द फोर्थ पॉइंट ओवर देयर दैट it is what about the size. So if we talk about of size then it is greater than this, but not only greater but it is magnified. ठीक है, एक केस में हमने बिगर भी बोला था, बिगर था वो उस ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी जा रही थी और यहाँ पर ये क्या है, उससे और भी ज़्यादा बड़ी है. ठीक है, तो इसलिए इसको मैग्नीफाइड बोला गया है. ओके, दीज आर द इमेज फॉर्म्ड बट ओवर हियर यू विल फाइंड दैट दिस कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस में हमने सबसे पहले बोला था इन्फिनिटी के ऊपर जब ऑब्जेक्ट है तो उसका साइज़ क्या होगा, बहुत छोटा. जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था हमारे पास, ऑब्जेक्ट जब हमारे पास इन्फिनिटी पर था तो इमेज क्या हो रही थी, बहुत छोटी बन रही थी. ठीक है, फिर जब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट था ये कहाँ पर पहुँचा, कहाँ पहुँचा, बियॉन्ड 2F1, मतलब कि उस लेंस के पास जब आना शुरू हुआ तो जो इमेज है ना, इमेज का साइज़ हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया. ठीक है, और जब ये ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जैक्टली 2F1 पर आ गया तो उस वक्त जो इमेज और ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही बराबर हो गए. ठीक है, और जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास 2F1 और उस F1 के बीच में आया तो उस वक्त हमारे पास ये जो इमेज थी ये ग्रेटर हो गई. ठीक है, बड़ी बन गई. और जैसे ही ये F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट आता है तो ये जो इमेज थी ये और भी बड़ी बन जाती है. ठीक है, और जो हमारे पास जैसे ही ये F1 और उस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आया तो हमारे पास ये मैग्नीफाइड तो होगी लेकिन इससे छोटी रहेगी. ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास मैग्नीफाइड है. सो यू विल ऑब्जर्व वन थिंग कि जब ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा था, व्हेन ऑब्जेक्ट वाज कमिंग क्लोजर, ठीक है, तो पहले तो इमेज का साइज़ क्या हो रहा था, मतलब कि जो इमेज का साइज़ था वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा था. और जैसे ही ये एग्जैक्टली सेकंड फोकस पर आया तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक बराबर साइज़ के. लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट उस सेकंड फोकस के राइट साइड को गया और इमेज जो है वो उससे दूर होना शुरू हुई. ठीक है, तो इमेज जो है हमारे पास ये वहाँ पर बड़ी होना शुरू हो जाती है. सो यू विल फाइंड जब ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज नज़दीक थी, जैसे ही ऑब्जेक्ट नज़दीक आया तो इमेज जो है वो लेंस से थोड़ी सी दूर हो जाती है. और फर्दर हमारे पास जैसे ही ये सेकंड फोकस पर आया तो इमेज और जो ऑब्जेक्ट है दोनों एक ही जगह बन जाते हैं. एंड एज द ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू द लेंस उस वक्त जो इमेज है वो दूर की तरफ चली जाती है. ठीक है, सो दिस इज दैट ऑब्जर्वेशन विच वी हैव टेकन व्हाइल वी वर डूइंग दिस रे डायग्राम. नाउ ओवर हेयर फॉर कॉनकेव. कॉनकेव के लिए एक सिंगल केस किया जाता है
So one which is regarding to the focus we have already discussed, and this is the another case. ठीक है, तो मच इम्पॉर्टेंट है इसमें ओनली कॉन्वेक्स का ही आता है। तो कॉन्वेक्स जो कॉनकेव है, कॉनकेव में ये हमारे पास यहाँ पर F2 सेकेंड फोकस और ये इसका डबल 2F2। ओके, नाउ ओवर हेयर दैट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, इसमें अगर कहीं भी हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया एनीवेयर, ठीक है, तो पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल स्प्रेड आउट। तो अगर ट्रेस बैक करोगे तो फोकस पर मिलती हुई जाएगी। एंड इफ द सेकेंड रे ऑफ लाइट डायरेक्टली पासिस फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, तो ये जो दो रेस हैं ये आपस में इस जगह पे मीट की, यहाँ पर क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी एट दिस प्लेस। ओके, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाता है, इस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में एक इमेज बन जाती है। ठीक है, सो दस वी हैव ऑब्टेन्ड ओवर हेयर कि हमारे पास जो कॉनकेव है इसमें हमेशा ही क्या होगा, इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज होगी, और ये ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। ठीक है, सो दिस इज दैट नेचर ऑफ द इमेज इफ वी डिस्कस इन द केस ऑफ कॉनकेव। ओके, सो वी कैन आल्सो डिस्कस ओवर देयर यूजेस कि हमारे पास ये जो जैसे ऑब्जेक्ट है जहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे जब उसको रखा गया तो उसके यूजेस क्या हैं। सो दिस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।